today we start our new exercise. But before that, first we understand test for divisibility of number. Okay, how can we test a number is divisible or not by any other number? Okay, now first is divisible by 10. If a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10. Just take an example 80. At one place here is 0, so it is divisible by 10. 100, 1000, 10,570, all these numbers are divisible by 10 because at ones place the digit is 0. At ones place the digit is here is 0, so it is divisible by 10. Now divisibility by 5. A number a number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. Here is example, you very well understand. If at the ones place at ones place either 0 or 5, then it is divisible by 5. Just take an example 125. Okay, so divided by 5 we get 2 za 10, 25, 5 za 25, remainder 0. So it is completely divisible by 5. Similarly, this number, because at the end here is 0, so it is also divisible by 5. Now divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 and 8 in its ones place. In its ones place. So see that 0, 2, 4, 6, 8, all these are in the table of 2, and here also in the zeros are in the table of 10, and in table of 5 0 and 5 is also there. So you understand that in the table of 2 all this comes one by one. 2 ones are 2, 2 to the 4, 3 are 6, 4 are 8, 5 are 10, that's here is 0. So uh, at unit place digit in the multiple of 2, then it means it is divided by 2. Very simple. Was like 72. 72 is divisible by 2. 3 is 6, remainder 1, 12. 6 is 12, remainder 0. So it is divisible by 2. Divisibility by 3. If the sum of the digit is multiple of 3, then the number is divisible by 3. तो अगर कोई डिजिट है, जैसे ये 4 डिजिट नंबर है, इसका सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा. जैसे 7221. Now we add them. 7 plus 2 plus 2 plus 1, so we get 12. Now 12 is divisible by 3. 12 is divisible by 3 ones are 3, 3 fours are 12. So it means the whole number is divisible by 3. Look, 7, 2, 2, 1. Now we divide it. We get 3 2s are 6, remainder 1. Now carry over 2. 3 4s are 12, remainder 0. Now 2 is not divided by 3, so we put here 0 and write here 1. 7s are 21, remainder. So by dividing 7 double to 1 3, we get 2407 as a result. So it is very simple. Divisibility by 6. If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. Very simple. देखो हमें पता है 2 से 6 से डिवाइड कौन होगा, जो नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड, दोनों से जो डिवाइड होगा वो 6 से भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे 2 इंटू 3. अगर इन दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो डेफिनेटली 6 से भी होगा. सो यहाँ पे देखो 108, ये यूनिट प्लेस पे 8 है एंड 8 इजीली डिवाइड हो जाएगा 2 से. नाउ अब 3 के लिए देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सबको 8 करेंगे. 1 plus 0 plus 8 we get 3. Now 3 is divided by 3 in the 3 times, so this number is also divisible by 3. So it is very simple simple way to find out a number is divisible by 6, 3, 2, 5, 10 and so on.
divisibility by 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last two digit, that is ones and tens place, is divisible by 4. इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई 3 डिजिट नंबर है या उससे ज़्यादा का नंबर है तो वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लास्ट टू डिजिट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो डेफिनेटली पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 4 से. सी हियर इज एग्जांपल 1 2 5 6. Here 56 is the ones place and tens place number. Okay, ones place at 6 and tens place at 5. So see that if 56 is divided by 4, that means the whole number is divisible by 4. So 56 divided by 4, ones are 4 ones are, remainder 1, 6 fours are 16, 0. That means by 4 56 is completely divided. Now see, अगर ये है तो फिर ये 1256 भी डिवाइड होना चाहिए. Look at 1 2 5 6 is divided by 4. 3s are 12, remainder 0, 5 ones are 4, remainder 1, 6 4s are 16, remainder 0. Yes, so 1256 is divided by 4. Now see, divisibility by 8. A number with 4 or more digit is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. देखो जैसे 4 में था कि वहाँ पे क्या देखा हमने, टेंस प्लस 100 प्लस तक की डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 4 से, दैट मीन्स वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा. बट यहाँ पर क्या है, लास्ट 3 डिजिट, मतलब हमें हमें सॉरी टेंस प्लेस था यहाँ पे 4 में, यहाँ पे हमें 100 प्लेस तक देखना है. सो देखो एग्जांपल दिया है हमें 7 3 5 1 2, यहाँ की लास्ट 3 डिजिट मतलब 100 प्लस क्या है 5 1 2. अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 8 से. लाइक लुक एट 8 8 6 48, रिमाइंडर 3, 2 कैरी ओवर. नाउ 8 4 32, ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया. तो दैट मीन्स 7 3 5 1 2 जो है ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9. If the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. देखो ये बड़ा सिंपल है, जैसा हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए था वैसे ही 9 के लिए भी. यहाँ पे भी बोल रहा है अगर नंबर का सम 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. जैसे एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे 279. सी 2 plus 7 plus 9 is equal to 18. Now 18 is divided by 9, we get 2 as a quotient. Now 9 1 is 9, 9 2 is 18, so we get 2 as a result. So अगर ये पूरा नंबर का सम 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से. सी होता है कि नहीं, 279 डिवाइडेड बाय 9 divided by 9. 9 3s are 27. Now 9 9 1s are 9. Yes, the whole number is completely divided by 9. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11. ये थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इसमें पहले लिखा गया उसको रीड करते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस फ्रॉम राइट of the number. If the difference is either 0 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई नंबर है हमारे पास, उसको जैसे हम एग्जांपल ले रखा मैंने 61809, ये हमारे पास एक नंबर है. इसके ओड नंबर का सम, इसके ओड नंबर का सम कौन कौन से हो गए? ओड नंबर 9 फ्रॉम द राइट साइड, हम राइट साइड से देखेंगे. 9 एट द ओड प्लेस, फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 डिजिट्स है. तो 1 एट द ओड प्लेस, 3 एंड 5, इन सबका सम करेंगे तो 1 8 एंड 6 को हम पहले ऐड करेंगे. सो 9 प्लस 8 प्लस 6, सो इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, 14 plus 9 23 23 and
सम अब इवन प्लेस का नंबर, इवन प्लेस कौन कौन से हो गए, 2 हो गया एंड 4 हो गया. सो 0 + 1 इज इक्वल टू 1. अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 23 - 1, सो वी गेट 22. 22, yes, 22 is divisible by 11, 1 जा 2 जा, so whole number is completely divided by 11 also. देखो यहाँ पर भी हमने ये करा, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस इनका सम करा, देन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस उसका सम करा, देन दोनों का डिफरेंस लिया 22. अगर यहाँ पे 0 आ जाता है रिजल्ट, तब भी ये डिविजिबल होता है 11 से, और अगर 11 का मल्टीपल आया है दैट मीन्स वो भी डिविजिबल होगा 11 से. चेक कर लेते हैं. Let's see 61809. First we divide it by 11. So what we get? 5 za 55. Remainder is C. Remainder is 6. Then carry over 8. Now divided. Now again 6 za 66. Remainder is 2. Remainder is 2. Now carry over 2 0. Then 1 za 11. Remainder is 9. Then 9 99. So 9 11 9 za 99. Remainder is 0. So our the rule is completely follow, and we get completely divided by 11. We get completely divisible by 11. So first important thing is that after getting difference, either here is 0 or multiple of 11 or divisible by 11. It is a necessary condition for divisibility rule of 11. कॉपी में नोट डाउन करना है, एंड हमेशा फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये रूल नोट डाउन करना है आपकी कॉपी में, ताकि जब भी आप कॉपी खोलें तो एक बार इन रूल्स को रीड करें, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट बहुत सारी एक्सरसाइज में ये रूल्स काम आएंगे आपको. तो आपको ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. ओके, थैंक यू. दैट वी स्टडीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 3.3 एक्सरसाइज एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज जब तक आप पढ़ोगे एंड मैथ्स से कनेक्टेड रहोगे, ये रूल्स आपको हमेशा काम आएंगे. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन 3.3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 5 6 8 9 10 एंड 11 एंड से यस और नो. सो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, एक टेबल दे रखी है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं. हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जितने भी नंबर है क्या ये डिविजिबल होंगे टू ये गिवन नंबर से या नहीं. सो फर्स्ट इन्होंने कर रखा 128. वी मूव 990 को हम चेक करते हैं. क्या 2 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है. यूनिट प्लेस पे 0, दैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली 2 से. सो वी राइट हियर यस. 3, सो 3 के लिए क्या है, 3 के लिए रूल है कि हम जितने भी है इन सबको ऐड करके देखें. सो नाउ वी ऐड दैट 9 + 9 वी गेट and 0 we get 18. Now 18 is divisible by 3. Yes, 6 times, that means the whole number is divisible by 3. C 4 के लिए कंडीशन क्या थी, लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएगी 4 से, दैट मीन्स कंप्लीटली नंबर भी डिवाइड हो जाएगा. सो लास्ट 2 डिजिट क्या, 90. अगर ये 90 डिवाइड हो जाए 4 से, सी 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1 0, 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 2. देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, दैट मीन्स इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है 990 की, ये डिवाइड नहीं हो रही है 4 से, तो ये नंबर भी डिवाइड 4 से नहीं होगा. 5 के लिए कंडीशन क्या थी, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहे तब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा. तो यस, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 6 के लिए भी क्या कंडीशन थी, 6 के लिए था अगर कोई डिजिट या कोई नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा. तो यस, 2 एंड 3 से हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा. 8 के लिए कंडीशन थी, लास्ट 3 डिजिट अगर कंप्लीटली डिवाइड होगी 8 से तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से. सी चेक कर लेते हैं. 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 1 9, 2 ज़ा 16, रिमाइंडर 3 0, 3 ज़ा 24, रिमाइंडर 6. नो, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नहीं होगा. राइट हियर नो. 9 के लिए भी क्या कंडीशन थी, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा. सम ऑफ डिजिट
C. Here is 18. 18 is divided by 9. 2 the yes number is completely divided by 9. 10 के लिए कंडीशन नंबर 10 के लिए क्या है लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस डिजिट कैसे होना चाहिए 0 होना चाहिए. दैट मीन्स नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे 0 है तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा. 11 के लिए सिचुएशन क्या है 11 के लिए क्या था ओड एंड इवन का रूल था. ठीक है तो सी क्या ओड इवन रूल फॉलो होता है यहाँ पर यस होगा 990 ये 1 2 3 ये ओड डिजिट है और ये इवन डिजिट है तो सम ऑफ ओड डिजिट्स क्या हो गया 0 फ्रॉम द राइट साइड 0 प्लस 9 दैट मीन्स 9 सम ऑफ even digits even odd place digit and even place digit. Okay so here is only 9 so दोनों का डिफरेंस ले लेंगे डिफरेंस व्हाट वी गेट 9 माइनस 9 0 यस अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो तभी तो हम बोलते हैं कि नंबर 11 से डिवाइड होगा तो यस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11. सो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर होमवर्क आपको इसी टाइप से चेक करना है कौन किससे डिवाइड हो रहा है देन उसके बाद आपको यस एंड नो यहाँ पे फिल करना है. ओके एंड ये आपको कॉपी में भी करना है ऐसा नहीं आप बुक में करके छोड़ दें आपको आपकी नोटबुक में भी करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Using divisibility test determine which of the following number are divisible by 4 and 8. ये जो हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं अप टू जे ए टू जे हमें बताना है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8. सो हमें दोनों के लिए टेस्ट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैंने कुछ किए हैं डिविजिबिलिटी 4 एंड 8. सो 572 सी 4 से डिवाइड करने की कंडीशन क्या है लास्ट 2 डिजिट अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रही है 4 से दैट मीन्स नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल. तो यस 72 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 18 टाइम्स दैट मीन्स यहाँ पे तो कंडीशन फुलफिल हो गई. अब 8 के लिए देख लेते हैं 572 डिवाइडेड बाय 8 सो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. सो हैंस 572 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है बट 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ठीक है सिमिलरली एच इसके बीच के मैंने छोड़ दिए हैं वो होमवर्क रहेंगे आपके लिए. तो आपको बताना कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है एंड 8 से. यहाँ पे एक बड़ा नंबर था एच इसलिए मैंने इसको कंसिडर करा है. नाउ सी यहाँ पर भी लास्ट डिजिट क्या है 72 है तो 72 4 से डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम्स 4 1 जा 4 देन 3 इट विल बिकम 32 एंड 4 8 जा 32. तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया एंड डिवाइड करके भी देखा हमने तो कितना आंसर आ रहा है 7948768. नाउ सी 8 से डिवाइड होता है क्या लास्ट 3 डिजिट कौन सी है 2 7 एंड 0. तो 7072 को हमें डिवाइड करना है 8 से तो ऑब्वियसली 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे 72 ही बच रहा है. तो 8 9 जा 72 दैट मीन्स ये भी डिजिट कम्प्लीटली 8 से डिवाइड होगा. यस डेफिनेटली 8 से डिवाइड होगा. तो हमें यहाँ पे पता चला अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कर लेंगे जो हमें दिए हुए हैं ए टू जे. और ये बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आपको खुद करना है इसी रूल को फॉलो करना है लास्ट 2 डिजिट फॉर द 4 एंड लास्ट 3 डिजिट फॉर 8 एंड चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 8 और नॉट और 8 और नॉट. Similarly, next question number 3. Using divisibility test, which of the following number are divisible by 6? अब यहाँ पे हमें 6 के लिए टेस्ट करना है. So C 6 के लिए टेस्ट कैसे करेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है A to J है सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे बस कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कैसे करना है एक बार. बाकी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. सो A 297144 यस देखो 2 के लिए कंडीशन क्या है यूनिट प्लेस पे अगर डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से. तो यहाँ पर कैसा 4 है 4 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा. यस अब 3 के लिए क्या कंडीशन है इन सब का सम अगर डिवाइड हो जाएगा इन सम का टोटल अगर डिवाइड होता है 3 से दैट मीन्स नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. तो देखो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4
it will become 27. Now 27 is completely divisible by 3. That means we get as a 9 as a result. That means अगर जो नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली नंबर 6 से भी होगा. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम यस 297144 is divisible by 6. Okay, similarly check for 1258. ओके, हियर देखो यहाँ पे 2 से तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, तो ये तो हो गया. अब 3 से देखते हैं, इन सब का सम करेंगे. 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 वी गेट 16. नाउ 16 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. सो ये क्या ये नंबर डिवाइड होगा 6 से? नहीं. यहाँ पे लिखेंगे नो 1258 इज नॉट divisible by 6. सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चन करना अप टू जे. नंबर 4, यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 11, यहाँ पे 11 के लिए हमें टेस्ट करना है. तो 11 के लिए कंडीशन क्या है? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट. अगर सब्सट्रैक्शन 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए दैट मीन्स नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 5449. तो यहाँ पे देखो 5 ऑड प्लेस पर है एंड 4 ऑड प्लेस पर है. 1 2 3 4 1 एंड 3 ऑड प्लेस हो गया. तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स 4 प्लस 5 वी गेट 9. डिफरेंस ले लेंगे 9 माइनस 9 वी गेट 0. सो यस 5445 इज डिविजिबल बाय 11. सिमिलरली इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, A to F तक क्वेश्चन है, वो सारे आपके लिए होमवर्क है. नाउ डी वाला क्वेश्चन एक बार हम देखेंगे इसमें फिर से एक बार. सी इन डी क्वेश्चन हियर फर्स्ट वी राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट से. तो ऑड प्लेस कौन सी हो गई? 1 3 5 एंड 7, ये सारी ऑड प्लेस डिजिट हो गई. सो फर्स्ट वी राइट 1 पर क्या है 8 है. 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 वी गेट 17. नाउ सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस वो कौन सी हो गई? 2 4 6 एंड 8 वाली. सो 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 17. डिफरेंस 17 माइनस 17 0. यस 7019169308 is divisible by 11. Similarly rest of question आपको करना है, होमवर्क है वो आपके लिए. And the greatest digit in the blank space of each of the following number so that the number formed is divisible by 3. यहाँ पे कुछ हमें कुछ नंबर दे रखे हैं A and B एंड यहाँ पे कहीं पर ब्लैंक है. देखो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है. हमें डिजिट को फिल करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये इस पे हम क्या फिल करेंगे. सो बेसिकली देखा जाए तो ये डिविजिबिलिटी 3 के लिए हम चेक करेंगे. सो फर्स्ट अवर नंबर 6 डैश, यहाँ पर क्या है डैश है, ये 6724. सो सी 6 प्लस 3 के लिए हमें पता है सम ऑफ डिजिट करना है. अगर वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए दैट मीन्स नंबर डिविजिबल है. सी इसको हमने ऐड करा. सो व्हाट वी गेट 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4. सो इट विल बिकम 13. 13 प्लस 2 15. 15 प्लस 4 19. अब 19 तो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता. हमें पता है नेक्स्ट टर्म क्या है 21 होता है जो कि 3 के टेबल में आता है. तो अगर इसमें हम प्लस 2 कर दें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. यस प्लस 2 करा हमने यहाँ पर तो बन गया 21. सो 21 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. कितना टाइम्स? 7 टाइम्स. सो हम यहाँ पर जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर हम इस पूरे डिजिट में 2 और ऐड कर दें तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ पर हमने लिख दिया 2. सिमिलरली अवर नेक्स्ट टर्म 4765 डैश एंड 2 है. तो सबसे पहले हम इन सारे डिजिट को ऐड करेंगे. तो हमने इन सबको ऐड करा. सो वी व्हाट वी गेट 24. 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 वी गेट 24.
अब हमें पता है 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 से, यस, कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। तो अगर अब यहाँ पे हमें कुछ तो फिल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। क्या फिल करेंगे, 0। अगर हम 0 फिल कर लेंगे दैट मीन्स नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। इन क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर हमें गैस करना पड़ेगा, या तो जो कि कम्प्लीटली 3 की टेबल सबको पता है, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो हमें पता है कि कोई ना कोई नंबर हमें गैस करना पड़ेगा जिससे वो टोटल आ जाए 3 का मल्टीपल एंड उसे डिवाइड कर दे। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 6, इन 6 में क्या है, हमें टेस्ट करना है 11 के लिए। तो यहाँ पर भी सेम क्या कर रखा है, एक हमें ब्लैंक दे रखा है, ठीक है, एक डिजिट हमारे यहाँ पास वैकेंट है, हमें फाइंड आउट करना वो डिजिट कौन सी है। देखो सबसे पहले 11 का जो टेस्ट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ओड डिजिट्स करते हैं। तो सम ऑफ ओड डिजिट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 डिजिट है। तो ओड प्लेस पे कौन कौन सी हो गई, 1 3 एंड 5, ये हमारे पास ओड प्लेस हो गई। इन सबको ऐड करेंगे हम, 9 प्लस 3 प्लस 2 वी गेट 14। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, वो देख लेते हैं इवन प्लेस पे कौन कौन सी है। 8 प्लस ये हमारे पास अभी वैकेंट प्लेस है, वैकेंट स्पेस है, ठीक है। 8 प्लस 9 17, सी 8 प्लस 9 17, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर क्या है, वैकेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इस 17 में 8 ऐड कर दे तो बनता है 25, एंड 25 माइनस 14 कितना होता है, 11। दैट मीन्स नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे 8 लाना है, तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 17 माइनस 14 कर लो, तो आंसर क्या आएगा 3। जो भी आंसर आया है उसको फिर से 11 में से माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा 8। इस 8 को अगर हम ऐड कर दें 17 के साथ तो बनेगा 25, एंड 25 माइनस 14 वी गेट 11। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ब्लैंक में 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 8। बी में देखो आप क्या है, 8 ब्लैंक 9 4 8 4। अगेन फिर से हम वही करेंगे, फिर से सेम फॉलो करेंगे, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इनको हम प्लेस, ठीक है। सबसे पहले ये करा हमने, तो सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट 4 4 एंड 6, 4 4 एंड 6, ये 6 अभी मत लिखो, ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ओड प्लेस में यहाँ पे अभी 6 को भूल जाओ, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 8, एंड इवन प्लेस पे क्या है, 8 प्लस 9 प्लस 8 25। सो दोनों का डिफरेंस क्या लेंगे, 25 माइनस 8 वी गेट 17 एज अ रिजल्ट। ना इस 17 और फिर 11 को माइनस कर दो, वी गेट 6। अगर हम इस 6 को पुट कर दें यहाँ पर, इस 6 जो भी हमें मिला है इस 6 को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, सो जो हमारा जो क्राइटेरिया है डिफरेंस वाला वो फुलफिल हो जाएगा। 6 को ऐड कर देंगे तो क्या बन गया 14। Now 25 minus 14 we get 11 as a result, that means number is completely divisible by 11। यहाँ पे blank में क्या आ जाएगा 6। सो इट इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बस आपके माइंड में वो रूल रहना चाहिए। अगर रूल आपके माइंड में क्लियर है, आपको समझ में आ रहे हैं रूल, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ओके, थैंक यू।